Hello friends, how are you? So welcome to Code Curious YouTube channel. So today we are going to study another topic. So actually before I was means we were working on tree topic actually. So on the tree we have means a lot of things we have learned like binary search tree, binary tree, and Bannister's tree, insertion, deletion, and other trees like AVL tree. So today we will start what is red black tree. Okay, red, black, and together actually we are thinking. I am thinking to work on system design also, so that we can cover all the all interview related things together. So, what is red black tree? So you will get actually some mixing lectures. Sometimes data structure problems. Sometimes you will get uh, system designs related topics. So on the system design, we are covering some basic things like what is so that's components actually. So can we can build a component of high level design actually. So theoretical part we are covering like what is load balancing, scaling, and sharding. So these things. So you should, I think, visit these lecture to understand properly what system design. Okay, so let's start now. Red black tree. So why we need red black tree actually? While we have actually already a real tree to balance our binary search tree. So binary search tree, you know, I can remind you, binary search tree हमारी जो होती है binary search tree. So binary search tree actually not always balanced because of you create binary search tree for this nodes sorted type value you have 1 2 3 4. So binary search tree will be created 1 2 3 and 4. That's why we will create. So this is not actually balanced tree. If it's balanced is not balanced tree, so you cannot ensure actually height of binary tree is log n. H you can score as log n. So you have to balance the binary, otherwise there is no time complexity wise there is no use of binary sensitivity. Okay, so that's why to overcome this problem actually we need some balancing approach algos. So previous approach we have studied like AVL tree. So in AVL tree actually heights मोस्टली लेस इक्वल टू वन डिफरेंस हाइट का डिफरेंस जो है लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड ठीक है। तो हाइट डिफ एच डी कह सकते हैं इसको हम। और एच डी लेस इक्वल टू वन ग्रेटर इक्वल टू -1। ओके, तो ये इसके बिटवीन में रहना चाहिए हाइट। या एब्सोल्यूट वैल्यू का है तो एब्सोल्यूट वैल्यू में जीरो यहाँ पे आ जाएगा ठीक है। मोस्टली एब्सोल्यूट वैल्यू ही कैलकुलेट करते हैं तो इस वजह से इसको जीरो कह सकते हैं। वेयर एच डी क्या है, एच डी इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री ठीक है। इस तरीके से सो ये एवीएल ट्री में हम लोगों को रूल फॉलो करके हम एवीएल ट्री को बनाते हैं ठीक है। बट अब हमें वाई वी नीड एक्चुअली रेड ब्लैक ट्री वाइल वी हैव ऑलरेडी सम अदर वन अलगो एवीएल सच ट्री। ओके, एवीएल एवीएल ट्री एक्चुअली आल्सो sorry AVL tree also actually it is self balancing binary search tree. Okay, and red black tree also self balancing binary search tree. You can note here one point, both are self balancing binary search tree. Self balancing, how they are balancing, what approach they are following, this is different thing, but both are self balancing binary search tree ठीक है। BST और ये भी सेल्फ बैलेंसिंग binary search tree है।
Actually, what is the main difference I can say? Like because here we have to means use multiple swapping operations, rotation operations. What we will follow mostly to balance our tree, just like you have to balance this node actually. Currently, this is unbalanced, so in at this place you have to balance. So what you have to do, you have to right rotate first. So right rotate में क्या होगा, वन हो जाएगा, इधर थ्री आ जाएगा, एंड हियर टू, एंड हियर फोर. So this way you can balance. So one, one, two. अब यहाँ पे इस this node is still unbalanced here. So what you have to do again? Actually, you have to means this operation you have to apply at this place only before inserting four. Okay, so it will be balanced. These node will be balanced already. So that's way means either other left rotation or right rotation. That's way we have to follow lot of rotations actually. If you have in avial tree, if you have lot of insertion and deletion, so if for every insertion and deletion you have to balance our binary search tree because of, अगर यहाँ पे देख अगर आप देखोगे तो इस समय मान के एज्यूम करके चलते हैं कि ये हमारी बैलेंस है, मान लो यहाँ पे भी ये कोई नोट होता है, ठीक है, बैलेंस है. बट अगर आप इसमें अगर ये आप एक और नोड ऐड कर देते हो, इंसर्शन कर देते हो, सो इट विल बी अनबैलेंस्ड from this node. Okay, because height of this here 3 and here 1 only, 3 minus 2 becomes 2. So इस वजह से insertion, whenever you are doing insertion and deletion you have to balance your binary search. When balancing you have to make some left rotation, right rotation, sometimes left right, sometimes right right, left two times. That's way you have to make lot of rotations to so actually यहाँ पे रोटेशंस को कम करने के लिए हम यहाँ पर रेड ब्लैक ट्री को यूज करते हैं. इसका मतलब है कि अगर आपके पास में मिनिमम नंबर ऑफ इंसर्शन और डिलीशन है तो आप रेड ब्लैक एवियल ट्री यूज कर सकते हो, दिस इज बेस्ट. बट इफ यू हैव लॉट ऑफ मीन्स इंसर्शन एंड डिलीशंस तो आपको दूसरी अप्रोच अपनानी पड़ेगी. सो दिस इज एक्चुअली रेड ब्लैक ट्री, यू कैन गो फॉर रेड ब्लैक ट्री. So how they means by balancing the node in binary search tree using red black tree. So here red black tree have some properties actually. What are the properties here? So I can put here first thing, how red black tree look like actually. यहाँ पे क्या होता है, ये कोई नोड होता है ना. चलो यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं थोड़ा. नया नोड कैसे, नया टैब नहीं क्रिएट हो रहा. ओके, I have to go my book actually. अच्छा, नो नो आई डोंट थिंक. यहाँ से चलते हैं, ठीक है. सो एवियल ट्री के बारे में हमने रिमाइंड कर लिया, जो भी चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था. अब हम आगे चलते हैं फिर रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है. What are property red black tree? What is red black tree? Red black tree also self-balancing binary search tree where every node have some color, either red or black. तो यहाँ पे क्या, what is the definition of red black tree? Red black tree is self balancing binary search tree where every node in BST should have either red colored or black color and should follow some property, either red color or black color, and also it should follow some properties. कौन सी प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक. वो पहली प्रॉपर्टी, व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेयर red black tree is self balancing binary search tree, and every node in red black tree should have should have colored with either red or black, and root रूट नोड जो है, रूट नोड कलर्ड विथ ब्लैक कलर ऑलवेज.
always black color, there is no condition here. Okay. Number two, leaf node, leaf null node, leaf null node, वो भी ब्लैक होने चाहिए, ठीक। लीफ नोड, नल नोड, नल नोड की बात करें, अब मैं बनाते चलता हूँ। जैसे कि ये जो ट्री है, ब्लैक कलर होगा इसमें, ठीक है। एंड सम अदर नोड्स आई हैव हियर, चाइल्ड, this is also child, this is also child, this is, these are childs, okay, or you can say sub tree। और ये एक्चुअली this node don't have any left or right child, so he has some, what is called, I can say something, null node, okay, null, this is also considered, that's why means shape of this node I created different way little bit, okay। तो इनको आप ये समझ सकते हो, ये नल नोड्स हैं। पहले भी हमने थोड़ा स्पेस सही पहले से नहीं ध्यान दिया। ओके, ये एक्चुअल नोड है जिनमें डेटा है, ठीक। ये और ये जो लीफ नल नोड, इनको हम बोलते हैं लीफ नल नोड है। ये एक्चुअली नल, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड में कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसको हम कह रहे हैं ब्लैक, ठीक। ये क्या होना चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। मैं डायरेक्टली लीफ नोड की बात नहीं कर रहा, ठीक। ये एज्यूम करके चलते हैं कि ब्लैक होंगे, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी? So first property, root node should be black and leaf null node black। इस इसके बाद क्या होगा? थर्ड प्रॉपर्टी हमारी होगी इंटरनल प्रॉपर्टी, हम बोलते हैं उसको, कह सकते हो इंटरनल नोड के बारे में कि इंटरनल नोड कैसे होंगे। एक्चुअली जो रेड नोड, अगर इंटरनल नोड है, रूट छोड़ दीजिए, कर दो, छोड़ दो यहाँ पे, and leave the leaf null node and root node, so now comes to these internal node। so here actually what is the property, red, जो रेड नोड होगा, ठीक, कोई भी रेड नोड होगा, हो सकता है ये रेड हो या फिर ये रेड हो, रेड नोड, रेड नोड्स चाइल्ड, red node can't have this actually adjacent, red node can't have adjacent रेड नोड एक्चुअली। तो ये प्रॉपर्टी है, रेड नोड जो है, आप दो कई तरीके से लिख सकते हो, कैन हैव इट्स एडजेसेंट रेड नोड, या आप ये कह सकते हो रेड नोड कैंट हैव इट्स चाइल्ड और पेरेंट्स, चाइल्ड और पेरेंट्स रेड नोड। तो यहाँ पे रेड जो हमारा, रेड अगर कोई भी रेड नोड यहाँ पे है, रेड कलर्ड है, मान लो ये रेड कलर्ड है, ठीक, मान के चलते हैं ये रेड कलर्ड है, ये भी रेड कलर्ड है। तो अगर ये रेड कलर्ड है तो इसके पेरेंट और या फिर चाइल्ड होता अभी तो नहीं है, तो यहाँ पे एक्चुअली इट्स, यू कैन पुट हियर रेड कलर, ओके। why we can put, actually we will understand later on, but for now you can understood like we can put red color adjacent of red color, okay। तो यहाँ पे आप ब्लैक कर सकते हो बट रेड नहीं कर सकते हो। दिस इज द प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? What is the fourth property? Fourth property actually tells depth of null node. Depth of every depth of null node have some black number of node. Depth of null nodes have
एवरी यहाँ पे डेप्थ ऑफ एवरी नल नोड, एवरी नोड नल नोड हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ एवरी नल नोड, ठीक, या ईच। फोर्थ प्रॉपर्टी, डेप्थ ऑफ ईच null nodes have same number of black color, same number of black color, of black color। अब यहाँ से अगर आप काउंट करोगे, ये जो ट्री है यहाँ पे इसकी डेप्थ जो होगी, तो इसकी डेप्थ में भी ब्लैक कलर दो हैं, तो इसकी डेप्थ में भी ब्लैक कलर यहाँ पे दो ही होंगे, ठीक है। या हम फोर्थ फाइव प्रॉपर्टी एक और कह सकते हैं कि फ्रॉम एवरी नोड, या हम कह सकते हैं डिसेंडेंट पाथ जो है, डिसेंडेंट पाथ ऑफ एवरी नोड शुड कंटेन सेम नंबर ऑफ डिसेंडेंट पाथ ऑफ, डिसेंडेंट पाथ ऑफ एवरी नोड, ऑफ एवरी नोड, इंक्लूडिंग रूट आल्सो, इंक्लूडिंग रूट have same number of black node, have same number of black node, ओके। ये इस तरीके से इसमें ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी। तो आगे चलते हैं, अब प्रॉपर्टी हमारा हो गया। इसके बाद में अब हम हाउ, ओके लेट्स टेक सम एग्जांपल व्हाई वी नीड, मतलब हाउ वी आर बैलेंसिंग यूजिंग रेड, यूजिंग कलर्ड रेड और ब्लैक कलर, हाउ वी आर मीन्स balancing this binary search tree using red color and black color. These are we will understand, and what other remains here, बैलेंसिंग रेड ब्लैक ट्री प्रॉपर्टीज हो गई हैं। इसके बाद में मेरे दिमाग में भी आ रहा था, जस्ट मैं बताने वाला था, ओके लीव इट, आगे याद आ जाएगा फिर से। तो हाउ, ओके बैलेंसिंग, बहुत सारे नोट्स हो गए यहाँ पे, 15 है, ठीक है। तो एक्चुअली इसके बाद में एक और मैं सोच रहा था, क्या बताने जा रहा था कि यहाँ पे हाउ वी आर बैलेंसिंग द बाइनरी सर्च ट्री यूजिंग रेड कलर एंड ब्लैक कलर, एंड अदर थिंग, other points, if red color and black color, using red color and black color, if we could means if red color and black color doesn't work to balance our binary search tree, or if these color sometime ऐसा होगा कि आप कलरिंग नहीं कर पाओगे, then what you do actually, you then after then you have to use same, like in same as in behavioral tree rotation only, ओके। तो यहाँ पे हमेशा रोटेशन यूज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। sometimes if you red coloring is doesn't work, then you have to use rotation, okay। तो कितने स्टेप में हम लोग यहाँ पे बैलेंस करते हैं बाइनरी सर्च ट्री को, आर एल कह सकते हो या एल आर कह सकते हो, ठीक है। तो कितने स्टेप में हम लोग करते हैं इसको, 2 स्टेप में। तो यहाँ पे 15 था, 16 में आते हैं। सो फर्स्ट यू व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट हाउ वी आर बैलेंसिंग, हाउ टू बैलेंस BST using red black tree using color। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट यू हैव टू, तो पहले अच्छा वो हम समझ लेते हैं कि रेड कलर ब्लैक कलर यूज करके हाउ वी आर इंश्योरिंग द ट्री इज अ बैलेंस ट्री, ओके। लेट्स सी, लेट्स एज्यूम यू हैव 3 नोड्स, ओके लेट्स एज्यूम यू हैव 3, लेट्स एज्यूम we have 3 nodes only in a tree. So what are the combinations, what are the possible combination of red 3 nodes actually in the binary search tree? So first you can assume they might be this way, okay। तो इस तरीके से भी बाइनरी सर्च ट्री हो सकती है। तो इस प्रकार से अगर देखो यहाँ पे इसको कलरिंग करेंगे, तो मैंने रूल में बताया था ब्लैक रूट नोड ऑलवेज
है ब्लैक नोड, तो यहाँ पे हमने ब्लैक कर दिया। ठीक, इसके बाद में ये जो अगर आप यहाँ पर रेड कलर करते हो और यहाँ पर भी रेड कलर करते हो, रेड रेड, तो ये अगर इस तरीके से करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, दिस विल नॉट वर्क बिकॉज दिस इज नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट फॉलोइंग रेड ब्लैक ट्री प्रॉपर्टी। और दूसरा कॉम्बिनेशन हम कर सकते हैं, लेट्स सी, अगर आप, ये नोड हो गया, एक चीज़ मैं देख लेता हूँ क्योंकि मुझे भी चीज़ें कंफर्म नहीं है काफ़ी। अगर मान लो इस तरीके की ट्री है कोई, तो ये तो बैलेंस्ड है। ठीक, इफ़ यू हैव दिस वे ट्री, दिस इज बैलेंस्ड, एंड यहाँ पे अगर आपने ब्लैक कलर डाल रखा है और हियर यू हैव रेड कलर, हियर आल्सो यू हैव रेड कलर, and these are null nodes, so this is balanced, you can say balance बाइनरी षष्ठी। और दूसरा बैलेंस बाइनरी षष्ठी कैसी हो सकती है, ये ब्लैक कलर होगा, ये भी ब्लैक कलर हो और ये भी ब्लैक कलर हो, देन इट इज आल्सो बैलेंस्ड। तो यहाँ पे क्यों ये बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। कैसे, रेड ब्लैक ट्री की प्रॉपर्टी, बिकॉज दिस नोड, हाँ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर इसको, इस पे भी आप कहोगे सारे नोड भी ब्लैक हो सकते, क्यों नहीं किए आपने, ठीक है, तो वो भी मैं बताता हूँ आपको। बट इसको पहले एक बार समझ लेते हैं कि ये जो है, अब वाई दिस इज बैलेंस बाइनरी षष्ठी, एंड हियर आइदर वी आर फॉलोइंग ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ रेड ब्लैक ट्री और नॉट। तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट वाज, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी दोनों के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, बिकॉज दोनों ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड बाइनरी षष्ठी है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी वाज रूट नोड शुड बी ब्लैक, तो यहाँ पे ब्लैक कर दिया मैंने, बोल दिया। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी वाज लाइक नल नोड शुड है ब्लैक कलर, तो यहाँ पे नल नोड को ब्लैक एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे नल नोड हैं, ये ब्लैक कलर के हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इंटरनल प्रॉपर्टी में जो हम लोग कह रहे थे कि यहाँ पे ब्लैक नोड और सॉरी रेड नोड कैंट हैव, सो नॉट हैव, और कह सकते हैं कि इट्स एडजेसेंट रेड कलर नोड। तो यहाँ पे कोई एडजेसेंट रेड कलर नोड, इसके भी एडजेसेंट में देखोगे रेड कलर नोड नहीं है, इसके भी एडजेसेंट में रेड कलर नोड नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी वाज डेप्थ, डेप्थ ऑफ एवरी नल नोड हैव सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड है, यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड, दो है। या ये भी फोर्थ प्रॉपर्टी के थ्रू भी एज्यूम कर सकते हो कि फ्रॉम रूट नोड टू लीफ, रूट नोड टू लीफ नल नोड, और ये भी कह सकते हैं डिसेंडेंट पाथ ऑफ एनी नोड इंक्लूडिंग रूट नोड। ठीक है, सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर चेक करोगे तो यहाँ से दो हमारे आ रहे हैं, इस नोड नल नोड के लिए दो आ रहे हैं, डिसेंडेंट नोड है चूंकि इसका ना, डायरेक्ट डिसेंडेंट नोड पाथ है, डिसेंडेंट पाथ बोलेंगे, डिसेंडेंट नोड नहीं, डिसेंडेंट पाथ। तो इस नोड का डिसेंडेंट पाथ अगर देखोगे नल तक, नल नोड तक का, तो हियर आल्सो यू हैव टू, हियर आल्सो यू हैव टू, इन दिस केस यू विल सी, अगर तो हियर यू हैव ओनली वन ब्लैक, हियर आल्सो इन दिस पाथ यू हैव वन ब्लैक, हियर आल्सो यू हैव वन ब्लैक नोड। तो यहाँ पे भी ये रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब चारों प्रॉपर्टीज को ये फॉलो कर रहा है, इस वजह से दैट्स वाई मीन्स यूजिंग कलरिंग यू हैव बैलेंस्ड। ओके, यहाँ पे यहाँ पे आपको बैलेंस बाइनरी षष्ठी मिल गया आपको। बट आप ये अगर सोच रहे हैं यहाँ पे अपने कलरिंग अपने हिसाब से ही क्यों किया, यहाँ पर इसको हमने ऐसे की, ये इस तरीके का अगर आपके पास अनबैलेंस टाइप का है, ठीक, यू हैव लेट्स से यू हैव अनबैलेंस टाइप बाइनरी षष्ठी, सो कैसे कलरिंग करोगे आप, कोई भी कलरिंग आप ट्राई करके देखो। यहाँ पर रूट हमने ब्लैक कर दिया, चलो हम सारे को ब्लैक कर देते हैं। ठीक, तो क्या ये प्रॉपर्टी को, सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, दिस आल्सो हैव सम नल नोड। ठीक, नल नोड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नल नोड को कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी तभी आप अप्लाई कर पाओगे ना सारी, जब नल नोड सभी के होंगे। तो लेट्स सी कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो कर रहा है, अनबैलेंस्ड है बट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सभी को ब्लैक कलर से कर दिया। ठीक, क्या, क्योंकि ब्लैक क्यों कर दिया, क्योंकि आप ये वाला तो यूज कर ही नहीं सकते, ये वाला प्रॉपर्टी फेल हो जाएगा बिकॉज ऑफ फर्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी यूजिंग इंटर रेड कलर कैंट हैव इट्स
रेड कलर चाइल्ड नोड और पेरेंट नोड, मतलब एडजेसेंट नोड जो है रेड कलर के, आप रेड कलर नहीं यूज कर सकते, तो उस वजह से ये तो फेल हो जाएगा। ठीक, तो हमने दूसरा तरीका लिया कि सारे ब्लैक हो सकते हैं, और हम एक और तरीका यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी ब्लैक कर लें, ये भी ब्लैक कर लें, इसको रेड कर दें। ठीक, यहाँ एक और हम कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, ये भी ब्लैक हो सकता है, ये रेड हो सकता है, और ये ब्लैक हो सकता है। ठीक, तीनों में सभी में प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारा जो था, फर्स्ट प्रॉपर्टी सभी में फॉलो कर रहा है, ब्लैक 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 ब्लैक, एवरी ट्री फॉलोइंग फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारा क्या था कि नल नोड जो है एवरी ट्रीज के सभी के नल नोड जो हैं वो ब्लैक होने चाहिए, तो ब्लैक एज्यूम कर सकते हैं, ये ब्लैक है। ठीक, एज्यूम करो, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक रखता है, इस तरीके से ब्लैक रखता है। ठीक, ये सारे ब्लैक कलर्ड हैं, नल नोड जो है ब्लैक कलर्ड है, ये हमने एज्यूम कर रखा है। तो ये भी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है एक तरीके से, जूम कर यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एवरी नल नोड्स है कलर्ड विद ब्लैक कलर। व्हाट वाज द थर्ड प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी हमारा था कि इंटरनल नोड जो हमारा कोई भी रेड कलर नोड है एडजेसेंट उसके रेड कलर नहीं हो सकता, तो ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, बट ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी सही है, दिस इज आल्सो ट्रू। अब आते हैं, थर्ड हो गया। थर्ड, मैंने एक प्रॉपर्टी कम यहाँ पे नंबर दिया है, 5 तक आई थिंक होना चाहिए था, बट कोई नहीं, फोर्थ पे आते हैं, हमारा फोर्थ ही फेल हो जाएगा। कोई भी, फॉर एवरी नोड इट्स, ओके, डिसेंडेंट नोड ऑफ एनी नोड, ठीक है, डिसेंडेंट पाथ ऑफ एनी नोड इंक्लूडिंग रूट नोड हैव सेम नंबर ऑफ ब्लैक नोड। तो यहाँ पे आप इसका अगर इसके लिए जूम करो, तो इसका जो डिसेंडेंट पाथ है, ये भी एक डिसेंडेंट पाथ है, एक ये भी डिसेंडेंट पाथ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके से देखोगे इस साइड, तो डिसेंडेंट पाथ में एक ही ब्लैक नोड है। ठीक, बट इस साइड में यहाँ पे इसका डिसेंडेंट पाथ देखोगे, इसका डिसेंडेंट पाथ देखोगे यहाँ पे, इसका जो है, इसका भी एक ही है, इस तरफ इस साइड में मैं देख रहा हूँ एक ही है, इसका भी इस साइड में एक ही, बट लेफ्ट चाइल्ड में अगर देखोगे इसका डिसेंडेंट पाथ, क्योंकि ये भी एक डिसेंडेंट पाथ इसका है, तो इस पाथ में अगर देखोगे टू ब्लैक नोड है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ब्लैक नोड आ रहा है, तो ये तो फेल हो जाता है फोर्थ प्रॉपर्टी के थ्रू। रूट टू लीफ नोड, रूट टू नल नल नोड, रूट टू नल लीफ नोड, एक्चुअली अगर पाथ देखोगे, क्योंकि फोर्थ प्रॉपर्टी, फाइव प्रॉपर्टी, पांच प्रॉपर्टी हमारे पास है। ठीक है, तो वो भी फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप रूट से लीफ नोड तक का जाओगे, अगर रूट से इस लीफ नोड पे अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ ब्लैक नोड्स हैं वो कितने आ रहे हैं, दो ब्लैक नोड आ रहे हैं, बट यहाँ से यहाँ पे नल नोड की तरफ जाते हैं तो केवल एक ही ब्लैक नोड आएगा, तो इसी प्रकार ये भी फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इस पाथ में तो एक ही है, बट इस पाथ में जाओगे या इस पाथ से इस पाथ में जाओगे, so you have actually here two black node, so it's not actually following all red black properties। तो इसका मतलब अगर आप उन सारे रूल्स को फॉलो करके कोई भी BST बनाते हो, तो श्योर है कि 100% वो बैलेंस बाइनरी सर्चिटी होगी ही होगी। ठीक है, क्या होगी, बैलेंस बाइनरी सर्चिटी होगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग इसकी कलरिंग करते हैं। स्टार्ट में मैं भी थोड़ा कंफ्यूज था, बट लास्ट तक जाते जाते देखो सारा कुछ सही हो गया। ठीक, अब हम आते हैं कि हम इसको रेड ब्लैक इंसर्शन की तरफ आते हैं। ठीक है, कि तो वाइल इंसर्टिंग और डिलीटिंग एनीथिंग फ्रॉम द इंसर्ट इनटू BST कर देते हैं। जब भी हम इंसर्ट या डिलीट कर रहे होंगे बाइनरी सर्च में, तो एवरी टाइम, पहले let's say you have some tree, okay, let's assume you have any binary search tree, and here you are going to insert any node. Okay, here you have some, surely you have should have black colored, and you have here, let's say you have red colored, here also you have red colored, here also you have black color, mm, like that. Okay, and one other, I am taking some example, let's say you have black colored,
you have black colored, you have some red colored, and here also you have some black colored, and inserting new node. Here you wanted to insert any node. So फर्स्ट नोड लेफ्ट में जा सकता है, राइट में लेफ्ट में ही, लेफ्ट में राइट में कहीं पे भी जा सकता है, ठीक, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम देखते हैं, लेट्स से यू हैव टू ऐड नाउ वन नोड इनटू बीएसटी। सो अब आपको रिकलरिंग एवरी टाइम व्हेन यू आर डूइंग इंसर्शन और डिलीशन इन द बाइनरी सर्च ट्री, यू हैव टू रिकलर योर नोड, क्योंकि कलरिंग आपका प्रॉपर्टी को चेक करना है कि प्रॉपर्टी फेल नहीं होना है। अगर प्रॉपर्टी, अगर मान लो बाय इंसर्टिंग एनी नोड इन लेफ्ट और राइट ऑफ दिस नोड, लेट्स से गिव सम नंबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, okay, let's say we are after inserting in any node left or right of fifth node. So if colored, all the colored, so first thing, basic rule actually, while inserting any node into tree you have to color it a red color. एनी नोड जब भी आप इंसर्ट कर रहे हो, तो लेट से हमने इंसर्ट यहाँ पे कोई एक नोड किया, तो उसको ब्लाइंडली आपको क्या करना है, रेड कलर कर देना, नंबर 1। इसका थंब रूल बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा क्या थंब रूल है? थंब रूल है कि जब भी कोई इंसर्ट कर रहे हो, क्या मैंने कर दिया, जब भी कोई एक नोड इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उसको रेड कलर कर देना है, ठीक। इसके बाद में आपको, देन आफ्टर दैट यू हैव टू चेक आइदर वी आर फॉलोइंग ऑल रेड ब्लैक टी प्रॉपर्टीज और नॉट, ठीक, आरबीटी, ठीक, रेड ब्लैक टी प्रॉपर्टी हम फॉलो कर रहे हैं नहीं, तो इसके बाद में आपको क्या चेक करना है, देन चेक प्रॉपर्टीज। तो उसके लिए क्या चेक करोगे, क्योंकि आपने यहाँ पे इसको रेड बना दिया, तो इसका इट मीन्स इसका पेरेंट जो है वो रेड नहीं होना चाहिए। इफ दिस पेरेंट नोड इज रेड कलर्ड, लेट्स से दिस एग्जांपल, बिकॉज पेरेंट कलर जो है ब्लैक कलर है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपका ये चल जाता है, ठीक है। ये रेड कलर्ड है, आपको ये ब्लैक कलर था तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर ये रेड कलर्ड है, ये आपका रेड कलर्ड है, तो आपको क्या करना है, आपको इसके अंकल, ये अंकल हैं, ठीक, ये अंकल हैं, ये पेरेंट हैं, और ये ग्रैंडफादर हैं, ठीक है, सभी का काम आएगा। तो एक्चुअली इसके अंकल को चेक करना है कि अंकल हमारे अगर रेड कलर्ड हैं या ब्लैक कलर्ड हैं, ठीक। अंकल यहाँ पे देखो इसके ब्लैक कलर्ड थे, ठीक, अगर ये अंकल हमारे ब्लैक कलर्ड हैं और इसके बावजूद भी हमारा यहाँ पे, अगर मान लो ये अंकल हमारे ब्लैक कलर होते, फर्स्ट थिंग अगर अंकल रेड कलर है, तो इसका मतलब आपको रीकलरिंग करनी है टॉप पे, ठीक। अंकल क्या है, अगर रेड कलर है तो इन सभी नोट्स की रीकलरिंग करनी है। यहाँ पे भी आप ब्लैक कर दोगे, यहाँ पे भी ब्लैक कर दोगे, तो ये ट्री जो हमारी है कैसी बन जाएगी, यहाँ पे अगर अंकल चूंकि यहाँ पे रेड थे, तो यहाँ पे हमारी इस तरीके की ट्री बन जाएगी, ठीक है। ये भी ब्लैक कलर्ड हो जाएंगे, ये भी ब्लैक कलर्ड हो जाएंगे, ये भी, ये तो ब्लैक कलर्ड है ही, ठीक। और ये हमारा जो है, ये हमारा, लेकिन ये वाला अगर ब्लैक कलर कर दोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ पे भी हमारा ब्लैक कलर ही होना चाहिए फिर, तो अगर रेड कलर हो जाएगा तो प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी एक, ठीक है। लेकिन इसके बाद में यहाँ पे कलरिंग करने के बाद में आपको फिर पेरेंट पे जी चेक करना पड़ेगा। मतलब ये जो रूल है अप्लाई करोगे कि अगर अंकल हमारे, अगर मान लो रेड कलर हैं, तो हमें इसको रीकलरिंग करनी है, इसको भी रीकलरिंग करनी है, फिर इसके बाद में सेम रूल आपको इसके ग्रैंडफादर पे भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ग्रैंडफादर चूंकि हमारे रूट में आ जाते हैं, फिर हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे आपने ब्लैक कर दिया तो यहाँ पे भी ब्लैक होगा, और ये जो हमारे हैं यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी के थ्रू ये हमारा कंडीशन फेल हो जाएगा। इसको भी हमें आइदर, आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपने कर दिए, लेट्स से आपने यहाँ पे रेड कलर की कर रखा है तो भी प्रॉपर्टी फेल हो रही है, अगर यहाँ पे आपने ब्लैक कर रखा है तो भी प्रॉपर्टी फेल होगी, क्योंकि इसका जो ये वाला चाइल्ड होगा, लीफ नोड होगा, इसकी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स 2 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ नोड 3 हैं, यहाँ पे भी 3 आ रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चेक करना है। और अदरवाइज अगर आपका मान लो ये ब्लैक कलर्ड है, ठीक, ये प्रॉपर्टी एक बार मैं देख लेता हूँ क्योंकि मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ।
और इसके बाद में लेक्चर वैसे भी ख़त्म करने वाले हैं, मेरे पास होगा नोट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल मैं बोल रहा था कि लेट्स से यू आर इंसर्टिंग एनी T4 और T5, नहीं, एक्स नोड, यू आर इंसर्टिंग एक्स नोड, एक्चुअली ये पेरेंट है, ये एक्स नोड इंसर्ट कर रहे हो, पेरेंट, और ये अंकल है, ठीक। अगर ये अंकल जो हमारे हैं, अंकल जी हैं, अगर ये अंकल जी हमारे हैं, हमने हालांकि इस ट्री में ये T4 T5 को कलर नहीं दिया गया है, ठीक है, बट अगर कलर दिया गया होता तो श्योर है कि अनबैलेंस डे हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब मैं भी सही वो बता रहा था, बट यहाँ पे मैंने वहाँ पे नोट दे रखे थे इसके भी। तो यहाँ पे लेट्स से यू आर इंसर्टिंग एक्स, ये पेरेंट है, ये अंकल, अंकल आपका, अगर ये अंकल जो हमारे हैं ये, ठीक, अगर ये अंकल जी हैं जो हमारे रेड कलर्ड हैं, तो आपको क्या करना है, इसको ब्लैक कर देना, मतलब ये इसको ब्लैक करना है, इसके पेरेंट को भी ब्लैक करना है, ये इसको चेंज करके ये ट्री बन जाएगी, ठीक। इसके बाद में इससे आगे चल के आपको रूल अप्लाई करना है ग्रैंडफादर पे, ये ग्रैंडफादर जी है, बट ये एक्चुअली रूट नोट था, तो इसको फिर से आगे चल रिकलरिंग, अगर ये ब्लैक है तो इसको रिकलरिंग करनी पड़ेगी रेड, बट रूल के अकॉर्डिंग ब्लैक, ये रेड कलर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जब ये वर्क नहीं करता, चूंकि रूट नोड है और ये अगर आपने रेड कलर कर दिया, इट मीन्स कलरिंग नॉट वर्किंग हियर, सो यू हैव टू रीबैलेंस योर बाइनरी सर्च ट्री। तो यहाँ पे फिर रीबैलेंसिंग आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, चेंज द कलर ऑफ एक्स पेरेंट्स पी एंड अंकल, अंकल यू टू ब्लैक, अंकल और पेरेंट को ब्लैक कर दिया, चेंज द कलर ऑफ इट्स ग्रैंड फादर टू रेड, और ग्रैंड फादर को रेड कर दिया। रिपीट ऑल द रिकलरिंग स्टेप फॉर ग्रैंड फादर कंसिडरिंग इट एज एक्स, और ये जो सेम जो रिकलरिंग प्रोसेस है आपको करते रहना है, बट यहाँ पे जब तक रूट नहीं, अब ये रूट आ जाता है तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आते हैं यहाँ पे दूसरा, इफ द नोट्स अंकल हैज ब्लैक कलर, तो सेम है वहाँ पे भी वही है, अगर नोट्स के अंकल ब्लैक कलर्ड होते, लेट से अंकल जो है ये ब्लैक कलर होते हैं, तो क्या होता, देन देर आर फोर पॉसिबिलिटी, तो आपको चार पॉसिबिलिटी, यहाँ पे अगर अंकल हमारे ब्लैक कलर्ड होते ऑलरेडी से, तो हमारे पास चार प्रॉपर्टी होती, चार प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। आइदर यू हैव टू डू लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, और यू हैव टू डू लेफ्ट राइट, और राइट राइट, और राइट लेफ्ट, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टी आपको फॉलो करनी पड़ सकती है, जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है, लेट्स से यू हैव दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे अंकल तो ब्लैक हैं, तो यहाँ पे रेड था, एक्स भी रेड आपने कर दिया बाय डिफॉल्ट, तो चूंकि ये रेड रेड पास में हो नहीं सकते, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे रोटेशन करना पड़ेगा, रोटेशन वो भी ऐसा कि बानी सर्च ट्री का भी रूल जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बानी सर्च ट्री का रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए थे, क्योंकि बानी सर्च में क्या होता है, लेफ्ट नोड जो है ऑलवेज है स्मॉल वैल्यू, एंड राइट नोड है लार्जर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे रोटेट करके, यहाँ पे कौन सा रोटेशन यूज किया है, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन यूज किया, लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट तो नहीं, ये राइट रोटेशन यूज हुआ है, ठीक है। राइट रोटेशन ऑफ ग्रैंडफादर जी, ये ग्रैंडफादर जी थे, उनका राइट रोटेशन किया, देन स्वैप द कलर ऑफ ग्रैंडफादर जी टू एंड पेरेंट पी, ठीक। तो इस प्रकार से रोटेशन किया गया, इसके बाद में राइट लेफ्ट राइट केस हमारा आ जाता है, इसी प्रकार राइट राइट केस एंड राइट लेफ्ट, ये रोटेशन बाय द वे एवियल ट्री में हमने अच्छे से बताया था आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी कलरिंग आपको देखना पड़ेगा, इसमें रोटेशन के बाद में कलरिंग भी चेक करनी है, ठीक। तो इस तरीके से बाय द वे इम्प्लीमेंटेशन यू डोंट हैव टू डू, एंड अब मैंने अभी तक के एक्सपीरियंस में 9-10 ईयर एक्सपीरियंस में मैंने नहीं देखा कि कभी भी इंटरव्यू में कोई पूछा गया हो, ठीक है। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन कभी भी करवाया नहीं जाता, बट हाँ क्योंकि इसको यूज करना है, तो ऑलरेडी जावा और अदर लैंग्वेजेस ऑलवेज आई थिंक वहाँ पे कोई ना कोई यूटिलिटी क्लास आपको दिया गया होगा, जैसे जावा में हमारे पास में कौन सी ट्री है, क्लास जावा कलेक्शन में हमारे पास क्या कहते हैं, हाई सेट, और ट्री मैप, और सेट, क्या कहते हैं, ट्री मैप हमारे पास में होता है, और इसके अलावा सेट में भी होता है,
सेट में ट्री सेट होता है, ठीक है। तो दोनों इस तरीके दोनों का इम्प्लीमेंटेशन आप देखोगे तो ये पानी षष्ठी में ही होगा, ठीक है। और इसमें किस यूज पर्पज के लिए यूज होता है आपको बताया है कि मैंने, कभी आप मिनिमम मैक्स मिनिमम फाइंड आउट करना, मैक्सिमम फाइंड आउट करना, फ्लोर आपको चाहिए, है ना। और तो इस तरीके से ऑपरेशंस भी मैंने लगभग में बता रखे हैं आपको ऑलरेडी, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं। आपको अच्छा लगा वो लेक्चर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, शायद हीप ट्री पढ़ेंगे, या देखो एक और ट्री इसमें होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्प्ले ट्री बोलते हैं इसको, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछा नहीं गया है, वैसे भी इंटरव्यू में ज़्यादा यूज भी नहीं मुझे लगता उसका, ठीक है। स्प्ले ट्री भी होता है, कहाँ गया हमारा स्प्ले ट्री, बट इसको रेड ब्लैक ट्री को मैं और अच्छे से बता सकता था, बट टाइम वही है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, कहाँ गया स्प्ले ट्री, हाँ यही है, ठीक। तो स्प्ले ट्री क्या होता है एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने भी ज़्यादा नहीं इसको कभी पढ़ा है, शायद कॉलेज में ही पढ़ा था, इसके बाद में नहीं पढ़ा इसको, ठीक है। तो स्प्ले ट्री भी एक सेल्फ बैलेंसिंग बानी षष्ठी है। यहाँ पे थोड़ा इसका जो कंसेप्ट होता है लगभग में हमारा वही जो हमारा एवियल ट्री का होता है, सेम इसमें भी होता है लगभग में, ठीक है। बेसिक आइडिया बिहाइंड स्प्ले ट्री इज बीइंग इज ब्रिंग द मोस्ट रिसेंट एक्सेस्ड or inserted element to the root of the tree by performing sequence of tree rotation। देख रहे हो यहाँ पे वही ट्री रोटेशन आपको करना है, इसको बोलते हैं स्प्लेइंग, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म इन स्प्ले ट्री, वही इंसर्शन, सर्च, डिलीट, रोटेशन, इस तरीके से करने होते हैं। तो लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, सेट मैप in C++, SPL, tree set, tree map in Java. Most of the library implementation use red black tree। तो इसमें पहले ही बता दिया गया है। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डजंट सपोर्ट सेल्फ बैलेंसिंग BST। इन पाइथन वी कैन यूज बाई सेक्ट, ये क्या है मुझे नहीं, बिस बाइसेक्ट मॉड्यूल टू कीप सेट ऑफ सॉर्टेड डाटा। वी कैन आल्सो यूज पाई मॉड्यूल लाइक आरबीटी implementation of red black tree and PYAVL implementation of AVLT। तो पाइथन में काफ़ी दोनों लाइब्रेरी अलग अलग दिया गया है, देख रहे यूटिलिटी क्लासेस, यूटिलिटी लाइब्रेरीज टाइप का दे रखा है। हाउ डज सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री मेंटेन लेंथ, a typical operation done by trees rotation following are two basic operations that can be performed to rebalancing a BST without violating the BST property। यहाँ पे रोटेशन आप देखोगे सेम ही होगा, लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, मतलब लगभग में कॉन्सेप्ट इसमें भी वही है। आप पढ़ लेना अगर अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है। बट मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से ही पूछा नहीं गया, इसलिए मैं ज़्यादा इसको टाइम नहीं खर्च करना चाहता। और सच कहूँ तो इसको मुझे भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू गाइज, मिलते हैं, बाय।